My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु की बहुमूल्य संतानों, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में आप सभी को अभिवादन। We are going to meditate from Ephesians chapter 2 verse 10. हम मनन कर रहे हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 से। Turn your Bibles and follow the word of God along with me. अपनी बाइबल निकालें और मेरे साथ मिलकर इस वचन को पढ़िए। Ephesians 2:10 says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." इफिसियों 2:10 ये कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। In the life of Jesus Christ, there was only good works. यीशु के जीवन में केवल भले काम ही थे। He was helping so many people. वो बहुत से लोगों की मदद करता था, Delivered many people from all the problems. बहुत से लोगों को सारी समस्याओं से छुड़ाया। Even from death, He raised people and made the people happy. यहाँ तक कि उसने मुर्दों को जिलाया और लोगों को खुश भी किया। In the same way, God wants us to be like Him. इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने। In this world, He was born in a manger in a very poor man's family. इस संसार में वो चरनी में जन्मा और गरीब परिवार में पैदा हुआ। Why? क्यों? If you read 2 Corinthians chapter 8 verse 9, the word of God says, "For our sake Jesus became poor, that we through His poverty might become rich." दूसरा कुरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। This is a great sacrifice He made. उसने ये बहुत बड़ा बलिदान किया। He was brought up in a carpenter's house. वो तो एक बढ़ई के घर में पला बड़ा, But He was the King of Kings and the Lord of Lords. पर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। Why He humbled Himself like that? उसने इस तरह से अपने आप को नम्र क्यों किया? Just that we should also follow His footsteps. ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलते जाएं। If you read 1 Peter chapter 2 verse 21, यदि हम पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 पढ़ें, it says, "Christ suffered for us, leaving us an example that we should follow His footsteps." क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, ये कहता है। My friends, in the day-to-day life, just follow the example of Jesus Christ. मेरे दोस्तों, प्रतिदिन आप भी प्रभु के आदर्शों का पालन करते जाएं और उसे मानते जाएं। Give importance to the Word of God. प्रभु के वचनों को महत्व दें। Share the Word of God and your experiences with other people. परमेश्वर के वचनों को और अपने अनुभवों को दूसरों को बताएं। Pray for the people. लोगों के लिए प्रार्थना करें। You also spend your time before the Lord God Almighty. आप भी परमेश्वर के सामने अपना समय बिताते चले जाएं। Just follow His example. उसके आदर्शों का पालन करते चले जाएं। If you do that, what will happen? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? If you read 1 John chapter 4 verse 17, it says, यदि आप पहला यूहन्ना 4:17 पढ़ें तो ये कहता है, "You will become like Him." हम उसके जैसे हो जाएंगे। So as He is, so are we in this world. जैसा वो है वैसे संसार में हम भी हैं। My friends, follow the footsteps of Jesus. दोस्तों, यीशु के पद चिन्हों पर चलें। Don't waste even a single minute. एक मिनट भी बर्बाद ना करें। You will be just like Jesus. आप बस यीशु के जैसे होंगे। You will be transformed like Jesus. आप यीशु के जैसे बदल जाएंगे। Shall we ask Him to make us like that right now? तो आइए इस समय हम उससे मांगते हैं कि वो आपको ऐसा बनाए। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord, for your good example. पिता, आपके अच्छे आदर्शों के लिए धन्यवाद। Give your children grace to follow your ways. अपनी संतानों पर अनुग्रह कर कि ये तेरे पीछे Let चले, them not go in the wrong ways. ये गलत मार्गों में ना जाएं। Give them grace, Father. अपना अनुग्रह दे पिता। Bring them all to your ways. इनको अपने मार्गों पर लेकर आ। Teach them, Lord. इन्हें सिखा प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्या नगर कोयम्बतूर में है।
Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family और members. इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते The हैं। hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।